स्तुति करें उतना कम है। How much we praise Him is less. जितनी स्तुति करें उतना कम है। Because He is a wonderful God. क्योंकि वो अद्भुत ऐसे परमेश्वर हैं। Hallelujah. Do you agree with me, church? क्या आप मेरे साथ सहमत हैं कि वो अद्भुत परमेश्वर है? Okay. Hallelujah. हालेलुया। Once again, thank you, Pastor Matthew Johnson और and फिर- Daniel Johnson for having us here. फिर से एक बार पास्टर जॉनसन को और डैनियल को आप दोनों को धन्यवाद देना चाहेंगे। So blessed to have you this evening. और हम आशीषित हैं कि आप हमारे साथ जुड़े। Thank you so much. You came all the way from Uklanga to here to play the music. God bless you. और आप उपनगर से यहाँ तक आए, प्रभु आपको आशीषित करे। Thank you so much. Atul. Hallelujah. हालेलुया। Thank you, Jesus. धन्यवाद यीशु। Atul. Let's fall on our heads in prayer. आइए हम अपने सरों को झुकाएं और प्रार्थना करें। Let's fall on our heads in prayer. आइए हम अपने सरों को झुकाएं और इस वक्त प्रभु की ओर अपने ध्यान को केंद्रित Oh, करें। He is a wonderful and He is a true God. सच में वो महान ऐसे परमेश्वर है। He is a true and the living God. वो सत्य और वही जीवन I'm है। telling you, all the viewers, Jesus has power to change your life. यीशु मसीह के पास वो सामर्थ्य कि आपके जीवन को बदले। You may be going through whatever situation, but I tell you one thing, that the name of Jesus is powerful. आप चाहे किसी भी परिस्थिति से क्यों ना गुजर रहे हो, मैं आपसे कहना चाहूँगा कि यीशु का नाम सामर्थ्य The है। name of Jesus is miracle working. यीशु का नाम चमत्कारी नाम है। He can do anything. और यीशु मसीह आपके जीवन में कुछ भी कर सकते He हैं। can change the impossible things into possible. वो असंभव को संभव करने वाले ऐसे परमेश्वर हैं। He can make a way where there seems to be no way. जहाँ मार्ग नहीं दिखता वहाँ वो मार्ग बनाते He हैं। can do the miracles that you have not even expected in your life. और जो आपने सोचे भी नहीं, आपकी कल्पना से बढ़कर ऐसे चमत्कार वो आपके जीवन में कर सकते हैं। That is the power in the name of और Jesus. वो सामर्थ्य यीशु के नाम में That is the है। power we have in the name of Jesus. यीशु के नाम में सामर्थ्य है। Chitra, can you come and please sit here and just sing Tu Raja Hai? और हम बहन चित्रा से कहेंगे कि फिर से इस गीत में हमारी अगुवाई करें। तू राजा The है। paragraph Tu Raja Hai, Tu Prabhu Hai. तू राजा है, Jesus. तू प्रभु है, Jesus. तू महिमा से भरा हुआ है। Come on, elevate the name of Jesus. तू राजा है, तू प्रभु है। Lift the name of Jesus. तू महिमा से भरा हुआ है। तू राजा है, तू प्रभु है। तू महिमा से भरा हुआ है। Thank you, Jesus. Hallelujah, Jesus. Hallelujah. Hallelujah, Jesus. Hallelujah, Jesus. Viewers, I just say to you one thing. और मैं आप सभी दर्शकों से कहना चाहूँगा, Turn your life to Jesus. अपने जीवन को यीशु मसीह की ओर मोड़े। Turn your life to अपने Jesus. जीवन को यीशु के हाथों में सौंपे। If you have not given your life to Jesus, this is a golden opportunity for you to give your life to Jesus. यदि आपने अपने जीवन को यीशु मसीह को अर्पित नहीं किया, तो आज आपके पास ये सुनहरा मौका है कि आप अपना जीवन यीशु मसीह को दें। Just say after me, आप मेरे पीछे दोहराए, Lord Jesus, प्रभु यीशु come into my heart. मेरे हृदय में आ। I am sinner. मैं पापी हूँ, Forgive me for all my मेरे sins. सारे पापों के लिए मुझे माफ कीजिए। I receive you, Jesus, मैं आपको ग्रहण करता हूँ यीशु, as my personal एक Savior. व्यक्तिगत उद्धारकर्ता के तौर पर। In Jesus' name. यीशु के नाम से Amen. आमेन। And if you have prayed this prayer after me, यदि आपने ये
प्रार्थना मेरे पीछे दोहराई है। I'm telling you, today you are saved. मैं आपसे कहूँगा कि आज आपने अपने उद्धार को पाया And है salvation belongs to you. और उद्धार आपका है। Hallelujah. हालेलुया। Thank you, Jesus. धन्यवाद यीशु। Today, the topic that I'm going to share with you is turn to the Lord. आज मैं जो विषय आपसे बांटना चाहता हूँ उसका टाइटल है कि आप परमेश्वर की ओर मुड़े। Can you turn your Bibles to book of Deuteronomy व्यवस्था विवरण की तरफ अपने पवित्र शास्त्र को खोलेंगे and 4th chapter 4वां अध्याय and 30th verse, 30th. व्यवस्था विवरण 4 और 30वीं आयत। Just wait for you to open Deuteronomy. Can you reduce the speed of this pen, please? Yeah, 30. 4:30. Yeah, I'll just read in English, then you can read it in Hindi. Thank you. When thou art in tribulation, and all these things are come upon thee, even in the later days, if thou turn to the Lord thy God, and shalt be obedient unto his voice, for the Lord thy God is a merciful God. He will not forsake thee, neither destroy thee, nor forget the covenant of thy fathers, which he sware unto them. व्यवस्था विवरण 4 और 30वीं आयत कहती है, अंत के दिनों में जब तुम संकट में पड़ो और ये सब विपत्तियां तुम पर आ पड़े, तब तुम अपने परमेश्वर यहोवा की ओर फिरो और उसकी मानना, क्योंकि तेरा परमेश्वर यहोवा दयालु ईश्वर है। वह तुमको न तो छोड़ेगा न नष्ट करेगा, और जो वाचा उसने तेरे पितरों से शपथ खाकर बांधी है उसको नहीं भूलेगा। Hallelujah. हालेलुया। No, I am really excited with this word today. और आज के इस वचन से मैं बहुत ही उत्साहित हूँ। The verse says, if you are in tribulation. यदि आप संकट में हैं। Now the word tribulation means when you are in a great trouble. अब यहाँ संकट का मतलब है यदि आप बहुत बड़ी ऐसी समस्या में हैं। When you are suffering. और आप बहुत ही तकलीफ में हैं। And every sort of trouble has come upon you. और आप तो जैसे मानिए कि हर प्रकार का संकट आ गिरा है। हम कहते हैं ना, मेरे पे तो पहाड़ी आके गिर गया है। हम हिंदी में काफी ये मुहावरा कहते हैं, अरे मुझ पर तो पहाड़ गिर गया है। आज परमेश्वर उन लोगों से बात कर रहा है। When you say every side, brother, there is trouble. जब आप कहते हैं कि मुझ पे तो अभी संकट का मान लो पहाड़ ही टूट चुका है। There's a lot of struggle now in my life. अब मेरे जीवन में बहुत ही संघर्ष है। I cannot see rest from any side. और मैं कहीं से भी आराम नहीं देख पा रहा। The Lord is speaking to you today. आज प्रभु आपसे बात कर रहे हैं। The Lord is speaking to you today. प्रभु आज आपसे बात कर रहे हैं। Anything that has come upon you that is not good. कोई भी विपत्ति जो आप पर आ गिरी है, जो आपको लगता है कि ये मेरे लिए नहीं है, I'm not supposed to go from this. और ये सारी चीजों से मैं क्यों गुजर रहा हूँ? Why me, Lord? I am in this trouble. क्यों प्रभु मैं इस प्रकार के संकट में आ गिरा हूँ? The Lord is speaking to you one thing. प्रभु आपसे एक बात कह रहे हैं। Turn to the Lord with your whole heart. और अपने पूरे मन को आप यीशु की ओर फिराएं। Obey His voice. यीशु की आवाज को सुने। You know what is turning to the Lord? परमेश्वर की ओर मुड़ने का मतलब क्या है? Leave aside everything that is not from God. जो चीज प्रभु से नहीं है आप उसे छोड़ दें। Leave aside every evil that is not from God. जो दुष्टताई जो भी आपके जीवन में सही नहीं है आप उसे छोड़ दें। Every sin that is just pulling you back. हर एक पाप जो आपको पीछे खींच रहा है। Everything that is drawing you away from the kingdom of God. हर एक ऐसी डोरी जो आपको खींच रही है प्रभु से दूर। Every voice that is speaking to you that is not from God. हर एक ऐसी आवाज जो आपसे बात कर रही है जो परमेश्वर से नहीं है। The Lord is saying to you, my son, my daughter, turn away from all those things. प्रभु आज आपसे कह रहे हैं मेरे बेटे मेरी बेटी, आप उन चीजों से अपने मन को फिरा लो। Hear my voice. मेरी आवाज को सुनो। Hear my commandments. मेरी वाचा मेरी बातों को आप सुने। And be
obedient unto me. और आप आज्ञाकारी बने रहे। You know, the moment, the time, the day and hour whenever you decide to turn to Jesus. जिस पल, जिस क्षण, जिस घड़ी आप यीशु की तरफ मुड़ना चाहते हैं, You may be saying, brother, I have not prayed much as I am supposed to pray. आप कहते होंगे कि भाई मैंने उतनी प्रार्थना नहीं की जितनी मुझे करनी चाहिए, I have not given my 100% to God. I am far from God. और मैंने अपना 100% प्रभु को नहीं दिया है और मैं प्रभु से दूर हूँ, I have wasted my time in all these things, but I have not come to Jesus. और मैंने बहुत सारी चीजों में अपने समय बर्बाद कर दिया और मैं यीशु मसीह के पास कभी आया नहीं हूँ। But church, my brothers, my sisters, my friends, I speak this word in the name of Jesus. As a minister of the gospel, today the Lord is speaking to you. Hear one thing, that is just turn to the Lord. In spite of your failures, in spite of your shortcomings, the Lord is telling you this evening, just turn to me, my son. I am merciful God. और प्रभु आज आपसे कह रहे हैं कि चाहे कुछ भी आपके जीवन में क्यों ना हुआ हो, आज इस पल आप यीशु मसीह की ओर मुड़े, आज इस पल आप अपने मन को यीशु की ओर ले आए। Satan may say to you, how can you be close to God? शैतान आपसे कह सकता होगा कि आप कैसे प्रभु के करीब हो सकते Remember हैं? the double standard you have lived. और आपने तो जीवन में दुगले स्तर का जीवन और ऐसी शैली आपने बिताई है कि आप कभी इधर और कभी उधर थे। Remember your past life, what you have lived. भूल गए अपना पिछला जीवन। That is the voice of Satan. याद रखिए ये शैतान की आवाज है, But the voice of the Lord is, turn back to me, my son. और प्रभु की आवाज आपसे कहती है कि हे मेरे बेटे, आज इस पल लौट आ। The moment you decide to turn back to Christ, और जिस पल आप कहते हैं कि मैं यीशु की ओर आना चाहता हूँ, 31st verse says, the Lord thy God is a merciful God. आप पढ़िए अपने बाइबल में 31 वचन क्या कहता है, क्योंकि तेरा परमेश्वर यहोवा दयालु है। Can you say after me, my God Jesus is merciful God? क्या आप मेरे पीछे कह सकते हैं कि मेरा परमेश्वर, मेरा यीशु दयालु है। His mercies are new every morning. यीशु की करुणा हर सवेरे नई है। And see the next part, it says, He will not forsake thee. प्रभु आपको नहीं छोड़ेंगे। You may think how the Lord will accept me, but the Lord is saying, leave about acceptance, I will not forsake thee. Amen. आप सोचते होंगे कि प्रभु इतना पाप करने के बाद क्या मुझे स्वीकारेंगे? स्वीकार करने की बात भूल जाए। प्रभु तो आपको कह रहे हैं कि इस कदर मैं स्वीकारूंगा कि तुझे कभी नहीं छोड़ूंगा। The next part says, neither destroy thee. और ना तुझे नष्ट करूंगा। How can I go to that holy God? उस अति पवित्र परमेश्वर के पास मैं पापी कैसे जाऊं? Listen to you, my son, I will not destroy you. प्रभु कहते हैं मैं तुझे नष्ट नहीं करूंगा। And it says, nor forget the covenant of thy fathers, which he sware unto them. और पितरों से की हुई वाचा को कभी न भूलूंगा। Say, my God is merciful. कहिए मेरा परमेश्वर दयालु है। My God will not forsake me. मेरा प्रभु मुझे कभी नहीं छोड़ेगा। My God will not destroy me. मेरा प्रभु मुझे कभी नष्ट न होने My देगा। Jesus will not forget his covenant of the cross. मेरा यीशु अपने क्रूस की वाचा को कभी नहीं I भूलेगा। have acceptance with Jesus. यीशु मसीह ने मुझे स्वीकार किया I find है। love in Jesus. यीशु मसीह ने मुझसे प्यार किया I get my है। hope back in Jesus. यीशु मसीह मेरी उम्मीद I get my है। call back in the name of यीशु Jesus. मसीह ने मुझे बुलाया है। Because my God is calling me. मेरा प्रभु मुझे बुला रहा And I है am running to that voice और today. मैं आज उसकी आवाज सुनकर दौड़ रहा हूँ। Hallelujah. हालेलुया। Deuteronomy 32. व्यवस्था विवरण 32। These though, can you just open Deuteronomy 32, 3032? Please. Little faster, please. The word says, and shall return unto the Lord thy God, and shall obey his voice according to all that I command thee this day, thou and thy children with all thine heart and with all thy soul. The next verse, that then the Lord thy God will turn thy captivity. व्यवस्था विवरण 30वां अध्याय और 2 वचन, और अपनी संतान सहित अपने
अपने सारे मन और सारे प्राण से अपने परमेश्वर यहोवा संतान सहित अपने सारे मन और प्राण सहित अपने यहोवा की ओर फिरकर जब हम यहोवा की ओर फिरते हैं अपने पूरे हृदय से, उसके पास लौट आए, जब हम उसके पास लौटते हैं, द नेक्स्ट वर्स, और इन सब आज्ञाओं के अनुसार जो मैं आज तुझे सुनाता हूँ, और जब हम सब खुदा की आज्ञाओं को मानते हैं, उसकी बातें माने, तब तेरा परमेश्वर यहोवा तुझको बंधनाई से, the first thing that the Lord does when you turn to Him is break your captivity. प्रभु आपकी बंधनाई को तोड़ते हैं। When you turn to Christ, जब आप मसीह के पास लौट आते हैं, the first thing that the Lord does is break your captivity. सबसे पहली बात यीशु मसीह क्या करते हैं? आपके बंधनों को तोड़ते हैं। Every power of sin and every power of evil that has dominion over your life, the Lord breaks it first. पाप के सामर्थ को और दुष्टता की सामर्थ को यीशु मसीह पहले क्या करते हैं? उसे तोड़ देते हैं। The chains, the shackles, the bonds that you have in your life, that when you turn to Christ, the first thing that the Lord will do will break every yoke, will break every shackles, will break every bondages, and will remove you from your captivity. जब आप सोचते हैं कि मुझे प्रभु के पास लौट आना है और आप प्रभु के पास लौट आते हैं, तो सबसे पहली बात प्रभु आपके बंधनों को और वो सारी चेन्स को जो आपको बांध कर रखती है, वो जो बेड़ियां हैं, प्रभु उन बेड़ियों को क्या करते हैं? तोड़ देते हैं। How can I turn to Christ? I am still living in sin. और मैं मसीह के पास कैसे आऊं? मैं तो पाप में जीवन बिता रहा हूँ। You have a heart for Christ. You turn to Christ. He will break that power of sin in your life. आपको सिर्फ एक ही काम करनी है कि प्रभु मैं आपके पास लौट आता हूँ और बंधन तोड़ने का काम प्रभु खुद कर लेंगे। बंधन तोड़ने का काम प्रभु खुद करेंगे, और वो पहला काम है। जब आप अपने पूरे हृदय से यीशु के पीछे आते हो और कहते हो बस हो चुका परमेश्वर, अब मैं अपना जीवन आपको देता हूँ। परमेश्वर कहता है मैं दयावान हूँ, मैं तुझे नष्ट नहीं करूंगा, मैं तुझे कभी ना भूलूंगा, मैं अपनी वाचा याद रखता हूँ और मैं तेरे बंधनों को तोड़ता हूँ। मैं तेरे बंधनों को तोड़ता हूँ। अंधकार का बंधन, सुसाइड का बंधन, रिजेक्शन का बंधन, हेट्रेड का बंधन, सारे बंधनों को यीशु मसीह अपने पवित्र आत्मा, अपने सामर्थ से सारे बंधनों को तोड़ते हैं। उसके बाद क्या? The same verse, third verse. तब तेरा परमेश्वर यहोवा तुझको बंधनाई से लौटा ले आएगा और तुझ पर दया करके, और तुझ पर दया करेगा। उन सब The Lord says, I will break your captivity and I will have compassion upon you. प्रभु कहते हैं कि मैं बंधनाई को तोड़ूंगा और मैं आप पर क्या करूंगा? दया। You need compassion. क्या आज आपको दया की जरूरत है? Don't look unto man for compassion. मनुष्य की ओर आप ना देखें, Look unto Jesus. यीशु की ओर देखें। He says that I will have compassion upon you. यीशु कहते हैं कि मैं दयालु परमेश्वर हूं और मैं तुम पर अपनी करुणा बरसाऊंगा। And the last part, can you read please? उन सब देशों के लोगों में जिनके मध्य में वह तुझको तितर बितर कर देगा, फिर इकट्ठा करेगा। The Lord will gather you. जो लोग तितर बितर हो गए हैं उन्हें प्रभु इकट्ठा The करेंगे। Lord will gather you again into His kingdom. प्रभु फिर से आपको इकट्ठा करेंगे। कहाँ? अपने राज्य You will में। no more be captive. आप बंधनाई में अब ना रहेंगे। You will no more live in rejection. अब आप इनकार और धिक्कार ऐसे जीवन में नहीं You will no रहेंगे। more live in pain. आप दर्द में नहीं रहेंगे, Because the Lord is accepting you. क्योंकि प्रभु ने आपको स्वीकार कर लिया I है। cannot obey the words and the commandments of God, you may say. आप कहते होंगे कि प्रभु की सारी आज्ञाओं पर मैं खरा नहीं उतर पाया। But the Lord is saying in the 6th verse, I will circumcise your heart. पर छठी आयत अगर आप पढ़ेंगे तो प्रभु कहते हैं कि मैं तुम्हारे हृदय को शुद्ध करूंगा And I will put my word in your inward parts. और मैं अपने वचन को तुम्हारे हृदय की गहराइयों में डालूंगा, Then you will keep my words. ताकि तुम मेरे वचन का पालन He will कर help सको। you. प्रभु आपकी मदद करेंगे। My sister, the Lord will help you. मेरी बहन, प्रभु आपकी मदद करेंगे। You don't need to be perfect to come to Christ. You just need a heart to come to Christ. The rest, all the Lord will do it. आप ऐसा ना कहें कि मैं संपूर्ण नहीं हूँ, मैं परफेक्ट नहीं हूँ, मैं प्रभु के पास कैसे आऊँ? आप प्रभु के पास आ जाइए
करना वो प्रभु का कार्य है। You need to just call into the name of Jesus. आप यीशु के नाम को पुकारे। You may be going through the most tough times in your life, but the thing that you and I need to do is to call the name of Jesus in the time of distress. और कितनी भी मुश्किल समय क्यों ना हो, कितनी भी कठिनाइयां क्यों ना हो, यीशु के नाम को आप पुकारे। Start crying to Jesus. यीशु के नाम को पुकारे। Psalms 18:6 says, भजन संहिता 18:6 कहता है, in my distress I call upon the Lord मेरी तकलीफों में मैंने यहोवा को पुकारा and cried unto my God. और मैंने अपने परमेश्वर की तरफ दुहाई दी। He heard my voice out of his temple. उन्होंने अपने मंदिर से मेरी इस आवाज को, मेरी इस दुहाई को सुन लिया And my cry came before him, even into his ears. और मेरी दुहाई उनके कानों तक पहुंची। आप कहते रहोगे मुझे कौन सहायता देगा, मुझे कौन मदद करेगा, कौन सा डॉक्टर मेरा अच्छे से इलाज करेगा? Yes, doctors are there for you. डॉक्टर्स आपके लिए हैं, सब बातें हैं, लेकिन आप प्रभु यीशु को दिल से पुकारो, अपनी दुहाई उस जीवित परमेश्वर को दो, वो आपकी दुहाई को सुनेगा। उस सिंहासन पर से भी वो आपकी दुहाई को सुनेगा, और केवल सुनेगा ही नहीं, आपको उत्तर देगा। केवल उत्तर नहीं देगा, आपको उस प्रॉब्लम से वो बाहर निकालेगा। He will deliver you. प्रभु आपको आजाद करेंगे। He will deliver you. प्रभु आपको आजाद करेंगे। That is the power in the name of और Jesus. वही सामर्थ्य यीशु मसीह के नाम में। You know, the Bible says, you know, when you come to Jesus, बाइबल कहता है कि जब आप यीशु की ओर आते हैं, sorry, when you turn to Jesus, जब आप यीशु की ओर मुड़ते हैं, when you give your heart to Jesus, जब आप यीशु की तरफ अपने हृदय को रखते हैं, He will open His treasure to you. आमेन। प्रभु अपने सारे धन को, अपनी सारी मिल्कियत को आपकी तरफ खोल देंगे। Read the word very carefully. वचन आप ध्यान से पढ़ें। He was speaking to Israel. Israel, turn back to me. और प्रभु जब इज़राइल से कहते हैं, इज़राइल मेरी ओर मुड़ जाओ, Hear my voice. मेरी आवाज को सुन। And he says in the 30th, Deuteronomy 39, he says, और व्यवस्था विवरण please know. 30:9 He says, the Lord thy God will make thee plenteous. Yeah. यहोवा तेरी भलाई के लिए तेरे सब कामों में तेरी संतान, तेरे और पशुओं के बच्चों, भूमि की उपज में तेरी बढ़ती करेंगे। यहोवा आपकी बढ़ती करेगा। ये वचन तब नहीं लिखा कि परमेश्वर में आप एकदम दृढ़ हो जाओ, वो ये वचन तब लिखा है जब परमेश्वर ने, यहोवा ने इस्राएल को अपने पास बुलाया कि मैं तुझे, तेरे वंश को, तेरे संतानों को, तेरे भेड़ को, तेरे बकरियों को, तेरे खेत को, तेरे हल को, तेरे भूमि को मैं बढ़ोतरी दूंगा, मैं उज्जवल करूंगा, मैं इंक्रीज इट, बढ़ाऊंगा एंड बढ़ती करेगा, क्योंकि यहोवा फिर तेरे ऊपर भलाई के लिए वैसा ही आनंद करेगा जैसा उसने तेरे पूर्वजों के ऊपर किया था। Lord will do for you, church. प्रभु आपके लिए जरूर अपनी भलाई को बरसाएंगे। I make my statement very clear. The Lord may not, but the Lord will do for you. मैं ऐसा नहीं कह रहा हूँ कि प्रभु शायद कर ले, प्रभु करेंगे। When you just turn to Jesus. जब आप यीशु की ओर मुड़ेंगे। You know, in the book of 1 Samuel, एक शमूएल में आप पढ़ सकते हैं। we read in the 6th chapter and 7th chapter. और छठा और 7वां अध्याय। Samuel was a prophet that was started hearing God's voice. शमूएल जो है वो एक ऐसे नबी थे जो परमेश्वर की आवाज को सुनते थे। And he speaks very clearly to the people of Israel. और वो इज़राइल के लोगों से स्पष्टता से कहते He हैं, was saying to them, turn your hearts to God. वो कहते हैं कि अपने हृदय को यीशु की ओर मोड़िए। Leave all your idols aside and just give your heart to Jesus. अपनी मूर्तियों को आप छोड़ें और आप यीशु की ओर अपने मन को फिराएं। Those days they used to say Jehovah. और उन दिनों में वो कहते थे यहोवा। The same, the Father, Son and the Holy Spirit are from the beginning till the end. और पिता, पुत्र, पवित्र आत्मा जो शुरू से थे और अभी भी और हमेशा के लिए। I tell you, church, if you read very carefully these 2 chapters, Samuel brought revival in Israel and gathered the people, made them to run after God and keep Him as the God of their lives. और आप देखेंगे कि शमूएल ने उस इज़राइल के देश में सभी लोगों में एक ऐसी संजीवनी लाई और उनके हृदय को परमेश्वर की तरफ ले आया।
And he said, now you need to be consecrated. अब आपको समर्पण करना है। Now you just need to give your heart to God. अब अपना हृदय आप प्रभु की ओर दें, Because he is your God. क्योंकि यहोवा आपके परमेश्वर है। They accepted it. उन्होंने उसे स्वीकारा, They followed it. उसके पीछे चले, Immediately after that, the Bible, the scripture says, the Philistines attacked them. और तुरंत ही बाइबल कहता है कि फिलिस्तियों ने उन पर हमला किया। The Philistines attacked them. फिलिस्तियों ने उन पर हमला किया। Now listen very carefully. अब ध्यान से सुने, When this happened, जब ऐसा हुआ, they had already turned to God. वे परमेश्वर की ओर मुड़ चुके थे। They started praying to God. वे प्रभु की तरफ दुहाई देने लगे, They started interceding to God. वे प्रभु से प्रार्थना करने लगे। And the scripture says so clearly that the Lord sent only the thunder, and Philistines were scattered. और वहाँ पर वचन कहता है कि प्रभु ने गर्जाहट की और वहाँ पर जो लोग थे, फिलिस्ती जो लोग थे, वो हार गए। Not fire from the heaven, और वहाँ अग्नि नहीं आई, वहाँ पर not the swords from heaven. वहाँ पर तलवार नहीं आई, There was a thunder. पर स्वर्ग से सिर्फ गरजने की आवाज आई। And the enemies were defeated. और जो दुश्मन थे वे हार गए। Listen to me very careful. और आप ध्यान से सुने, If you read, I will read it for you from 1 Samuel 7:14. 1 Samuel 7:14. 14वीं आयत, 1 सैमुएल 7:14। You know, when they turned their hearts to Jesus, जब उन्होंने अपने हृदय को परमेश्वर की ओर कर दिया, when they turned their hearts to God, जब उन्होंने अपने हृदय को परमेश्वर की ओर मोड़ they दिया, got victory. और वे विजयवान हुए। वो परमेश्वर के पीछे आए, दुश्मन भी उनके पीछे आए, लेकिन दुश्मन उनको पराजित न कर सके। पर यहोवा ने अपने थंडर, व्हाट यू से, अपनी गड़गड़ाहट से सारे शत्रुओं को नाश किया। इस्राएलियों को वहां पे विक्ट्री, विजय दी। एंड लिसन दिस वर्स, 14 वर्स, 14वीं आयत। यस। और एक्रोन और गत तक जितने नगर पलिश्तियों ने इजराइलियों के हाथ से, एक्रोन और गत से लेकर इतना बड़ा टेरिटरी और रीजन था जो फिलिस्तीन्स ने कॉन्कर किया था, छीन लिया था, कॉन्कर किया था, उनको पहले हराकर। परमेश्वर ने उन्होंने केवल जीत ही नहीं दी, पर जो पहले वाली जो भूमि थी जो फिलिस्तीन ने उनसे ली थी, हाँ जी, वे फिर इजराइलियों के वश में आ गए। God restored the land that the enemy had stolen from them. Not only gave them the victory, but every land, everything that the evil has stolen from them, God restored them back. जो उनके बैरियों ने चुराया था, वो भी परमेश्वर ने उन्हें लौटा कर दिया। Can you read the whole verse again in Hindi? और एक्रोन और गत तक जितने नगर पलिश्तियों ने इजराइलियों के हाथ से छीन लिए थे, वे फिर इजराइलियों के वश में आ गए, और उनका देश भी इजराइलियों ने पलिश्तियों के हाथ से छुड़ाया। और इजराइलियों और एमोरियों के बीच भी संधि हो गए। There was victory. जीत हुई। There was restoration. वहाँ पर फिर से रिश्ते जुड़ गए। Restoration. और बहाली हुई। And there was peace. और वहाँ पे शांति थी। Church, when you turn to God, जब आप परमेश्वर की ओर मुड़ जाते हैं, enemy can come after you. बैरी आपके विरुद्ध में आ सकते हैं, आपके पीछे आ सकते हैं, But God will stand with you. पर प्रभु आपके साथ खड़े होंगे। God will fight every battle of yours. प्रभु आपके लिए हर एक युद्ध को लड़ेंगे। He will give you victory that you have never imagined. प्रभु आपको ऐसी जीत देंगे जो आपने कभी कल्पना नहीं की। You don't have to take the swords and come against everyone. आपको तलवार लेकर लोगों के पीछे जाने की जरूरत The नहीं one who है। will take the sword will be killed by the sword, the Bible बाइबल says. कहता है कि वो जो तलवार उठाएगा वो तलवार से ही मारा You जाएगा। wrestle not against the flesh and blood, but you wrestle against the principalities and the powers of darkness. And when you pray for every trial, when you pray for every trouble, the Lord will stand with you. The Lord will fight for you. The Lord will restore everything that enemy has snatched from you. God will restore back to you. और हमारा जो युद्ध है वो मांस या लहू से नहीं, पर प्रधानताओं से, आकाश के हकीमों से है, और उन दुष्शक्तियों से है जो शैतान की है। तो हम तलवार न उठाएं, पर
प्रार्थना करें और यकीनन प्रभु आपको बहाली देंगे। प्रभु वो सारी चीजें आपको लौटा कर देंगे जो बैरी ने, जो शैतान ने चुराई है। And He will give you peace. और प्रभु आपको क्या देंगे? If you love, शांति। if you love God, He will make your enemies to be at peace with you. यदि आप परमेश्वर से प्रेम करते हैं तो आपके बैरी भी आपसे शांति बनाए रखेंगे। Church, listen one thing very carefully. कलीसिया ध्यान से सुने। All the people who have gone far from God, who think that they are not so close to God, I encourage you this evening, turn to God. Don't worry about any person. Don't worry about any person. Just turn to God. Say, Lord, I come back to you. वे जो प्रभु से दूर चले गए हैं और सोचते हैं कि प्रभु मैं आपसे बहुत दूर जा चुका हूँ, मैं आपसे कहूँगा आप लोगों की परवाह ना करें, आप किसी भी चीज की परवाह ना करें, आप प्रभु के पास लौट कर आएं। Bible says, in your tribulation, अपने संकट के समय में turn to God. प्रभु की ओर आप मुड़ At least जाएं। these are the times that we are seeing so difficult. और हम देख रहे हैं कि ये समय बहुत ही कठिन समय है। You need Jesus. आपको यीशु मसीह की जरूरत है। You need Jesus. आपको यीशु मसीह की जरूरत है। You need the servants of God to give you word. और आपको प्रभु के दासों की जरूरत है जो आपको वचन से तृप्त करें। The servants of God are sent by God परमेश्वर के दास परमेश्वर के द्वारा नियुक्त किए होते to हैं give the word of the chief shepherd to his sheep. और प्रमुख चरवाहे यीशु मसीह के शब्दों को अपनी भेड़ों तक पहुंचाने के And लिए। I, as the shepherd of the house of faith, give a word to you. Turn to God. Don't worry. Don't worry. Don't worry about your past. Just say today, Lord, I turn to you. You will see your captivity broken. You will see the compassion of God. You will see that your God is merciful. You will see that He will not destroy you. You will see that He will remember His covenant. You will see that He will restore to you everything that the enemy has stolen. You will see that He will give you victory in the areas where enemy has come against you. You will see peace because God is standing with you. और हाउस ऑफ फेथ का मैं चरवाहा होने के नाते कलीस से आपसे कहना चाहूंगा कि आप अपने पिछली जिंदगी को भूल जाएं। आपने जो भी पाप किए हैं आप प्रभु के सामने उसे रखें। आप प्रभु के पास लौट आए, वो आपकी बंधनाई को तोड़ेंगे, वो आपको हर एक पाप से आजाद करेंगे, वो आपको बहाली देंगे और वो आपके सारे जीवन के क्षेत्रों में अपनी शांति प्रदान करेंगे। You know, 1 week back when I was praying, और एक हफ्ता पहले की बात है जब मैं प्रार्थना कर रहा था I'm telling you very genuinely. और मैं आपसे बहुत ही स्पष्टता से कहना चाहूंगा During the prayer, प्रार्थना के समय में that was around 9 o'clock, 9 बजे थे and I heard the voice of the Lord. और प्रभु ने मुझे स्पष्ट रीति से कहा, My children will not hunger. My children will not thirst. मेरे बच्चे भूखे नहीं रहेंगे, मेरे बच्चे प्यासे नहीं I रहेंगे। saw a well और मैंने एक कुआं देखा and it was dried up. और वो सूख चुका था I just peeped into it and I saw empty. और मैंने उस कुएं में झांका तो वो पूरा खाली था। And the Spirit of God was just speaking to me, my children will not hunger, my children will not thirst, I am doing a new thing, I am springing up the well. And at the same time, when the Spirit of God was speaking to me, I saw that well was full of waters. और जब मैंने देखा कि वो खाली है, उसी वक्त पवित्र आत्मा की आवाज मुझे आई कि मैं अपने लोगों को, मैं अपने बच्चों को भूखा और प्यासा नहीं रहने दूंगा। और मैंने देखा कि वहां पर पानी आ गया और ये पवित्र आत्मा की जैसी आवाज आई, वहां उस सूखे कुएं में पानी भर गया। Nowhere in that vision I just saw the waters just springing up. Not ending, but just coming in that well. That well was still full of water. और जो सूखा कुआं था मैंने देखा कि वो पानी से भर गया। And I was saying, Lord, what it is? मैंने कहा कि प्रभु ये क्या है? If you show me something, you will give me the revelation from the word. यदि आपने मुझे बात दिखाई है तो अपने वचन से इसका प्रकटीकरण दें। And this is the word that the Lord gave me later. और फिर मुझे ये वचन मिला। Can you open your Bibles to? These are only few verses we are going to read and we are going to end up. Just little bit more concentration. Isaiah 41 chapter and 17 words onwards. यशायाह 41 और 17वीं आयत। Now this is the same thing what I saw in that vision. और यही बात मैंने उस दर्शन में देखी। Can you read, Chitra?
17 verse. जब दीन और दरिद्र लोग जल ढूंढने पर भी न पाए, दीन और दरिद्र. English Bible says poor and needy. जल ढूंढने पर भी जल न पाएंगे. We saw in that vision that the well was empty and the Spirit of God was saying, my people will not hunger, my people will not thirst. Yes. और उनका तालू प्यास के मारे सूख जाए. Talu is what exactly? Throat? Okay. This. The tongue and the throat part. Upper. जो जीभ के ऊपर का जो भाग है, पैलेट जिसे English Bible says the tongue faileth for thirst. और उनकी जीभ प्यास से भरी हुई है. When the people will be thirst and those people are given an adjective that those people are poor and needy. और यहाँ पे लिखा हुआ है वे दारिद्र है, वे दीन है. I the Lord hear them. मैं यहोवा उनकी विनती सुनूंगा. I the Lord hear them. मैं यहोवा उनकी विनती सुनूंगा. I the Lord of Israel will not forsake them. मैं इस्राएल का परमेश्वर उनको त्याग न दूंगा. I will open rivers in high places. Yeah, the next verse. मैं मुंडे टीलों से भी नदियां और मैदानों के बीच में सोते बहाऊंगा. And the fountains in the midst of valleys. मैं जंगल को ताल और निर्जल देश को सोते ही सोते कर दूंगा. I will make the wilderness a pool of water. और निर्जल देश को सोते कर दूंगा. And the dry land the springs of water. और जहाँ पर जल नहीं है वहाँ उसे मैं पानी से भर दूंगा. जहाँ पर जल नहीं है मैं उसे पानी से भर दूंगा. The Lord is saying in these last days, listen very carefully. When you are away from Christ, you are dry. और इन अंतिम दिनों में मैं कहूँगा यदि आप मसीह से दूर हैं तो आप सूखी भूमि के समान And when हैं. you are away from God, your condition is very miserable. और जब आप प्रभु से दूर हैं तो आपकी जो दशा है वो बहुत ही बुरी है. But the Lord has seen your cry. पर प्रभु ने आपके रोने को और आपकी आवाज को सुना है. The Lord has seen your condition. और प्रभु ने आपकी इस अवस्था को देखा है. And the Lord is speaking to you right now. और इस वक्त प्रभु आपसे बात कर रहे My हैं. son, my daughter, turn back to me. मेरे बेटे मेरी बेटी आप मेरे पास लौट आए. I will give you living waters. I will give you the waters that will spring in you and will be in you, the well of waters. और मैं तुम्हें जीवित जल दूंगा और मैं तुम्हें एक ऐसा सोता बनाऊंगा जिसका पानी कभी न सूखेगा. Your life may be dry and difficult. आज आपका जीवन सूखा हो सकता है और आज आपके जीवन में कोई खुशी नहीं हो सकती. But God promises to supply the needs of those who cry out to Him. पर प्रभु कहते हैं कि मैं उनकी जरूरतों को मुहैया करूंगा जो मुझे And the Lord पुकारेंगे. will do it in a supernatural way. और प्रभु यकीनन एक अलौकिक रीति से इस कार्य को करेंगे. And God desires to supply His people with every necessity. और प्रभु आपकी हर एक जरूरत को मुहैया करेंगे. The next 19 verse says there will be a plantation of important trees in that wilderness. और वहाँ पर दूसरी आयत कहती है कि वहाँ पर बहुत सारी हरियाली हो जाएगी, बहुत सारे पेड़ आ जाएंगे. Important trees. और बहुत ही महत्वपूर्ण ऐसे पेड़. It says cedar, shitta, myrtle, oil. These are the trees which are very much valuable. देवदार, बबूल, मेहंदी और जलपाई वहाँ पर उगेंगे. These are the trees of great resources. और ये जो पेड़ है वो बहुत ही धन लेकर आते हैं, बहुत ही अच्छी चीजें लेकर आते Your life हैं. maybe have become like wilderness. हो सकता है कि आपका जीवन एक वीरानी हो Your गया life may हो. have become like a dry land. आपका जीवन एक सूखी बंजर जमीन बन गया Your हो. life may become have a parched land. और हो सकता है कि आपका जीवन एक बंजर जमीन के समान And हो. you may say, Lord, how it will happen in my life. और आप कहते होंगे कि प्रभु कैसे होने I वाला have है. become afflicted. I have become needy. I have become powerless. और मैं तो गरीब हो चुका हूँ, मैं दारिद्रता में हूँ और मैं एक ऐसी स्थिति में आ गया हूँ जहाँ मुझे कुछ समझ में नहीं
I don't मिला have any strength. I cannot go any further. I'm doing a lot of hardships. और मेरे पास कोई ताकत नहीं है और मैं इतनी कठिनाइयों से गुजर रहा हूँ। But the Lord is saying, I will do in a miraculous way. प्रभु कहता है कि मैं चमत्कार करने वाला परमेश्वर I हूँ। can create out of nothing. Remember, that is the name of Jesus. और कुछ नहीं से मैं सब कुछ बना सकता हूँ, ये यीशु मसीह के नाम का सामर्थ्य है। In the darkness, He can create light. अंधकार में उजियाला लाने वाला यीशु, From the dust of the ground, with the breath of His nostril, He can create mankind. और जो धूल है उस धूल में जब यीशु मसीह ने अपने जीवन की श्वास को फूका तो मनुष्य जाति का निर्माण हुआ। From the rib of Adam, He can make a woman. और आदम की जो पसली है उससे उसने हवा का निर्माण किया। He can turn waters into the grape juice. और पानी को उन्होंने दाखरस में बदल दिया। He can part the Red Sea into two parts and make His people to walk in the dry land. और लाल समुद्र को दो भागों में बांटकर उसे एक सूखी भूमि इस तरह बनाई कि लोग उस पर चल पाए। He can break the great wall of Jericho. यरीको की ऊंची दीवारों को वो गिरा सकते हैं। He can fill all the accusers of Nehemiah and Sanballat and put their mouth shut and rebuild the wall of the temples. और नेहमिया को दोष लगाने वाले सभी मुखों को, सारी आवाजों को वो शांत करके उस दीवार को बांध सकते हैं। He is the same God who walked with Shadrach, Meshach and Abednego and did not allow any fire flame to touch their garments. और वही परमेश्वर है जो शद्रक, मेशक और अबेदनेगो के साथ उस आग की भट्टी में थे और उनके कपड़े तो क्या कुछ भी खरोच तक या आग की कोई भी ज्वाला उन तक पहुंचने नहीं दी। ऐसा हमारा परमेश्वर The lions है। were ready to eat and devour Daniel, but he shut the mouths of the lion. The same God of impossibilities is speaking to you. I will bring rain in the parched land. Just turn to me and see how the Lord loves you. और वही दानियल का परमेश्वर जो शेरों के मुंह को बंद कर सकता है, वही परमेश्वर आपको सूखी जमीन से एक पानी का नया सोता बना सकता है। Brother, I am in a deep valley. और आप कहेंगे मैं तो बहुत गहरी ऐसी खाई में गिर चुका हूँ। The Lord will work in that valley. पर उस खाई से भी ऊपर लाने का सामर्थ्य यीशु मसीह के पास है। The Lord will work in that valley tonight. प्रभु उस खाई में भी काम कर सकते हैं। The Lord will work in your darkest of hours. और आपके जीवन के सबसे अंधकार भरी घड़ी में उस समय में भी प्रभु कार्य कर In सकते all हैं। your brokenness, He says, I can work in your life. और आपके बिखरेपन में, आपके टूटेपन में भी यीशु मसीह कार्य कर सकते हैं। His name is none other than the name of और Jesus. वो कौन है? और कोई नहीं, यीशु मसीह। It's the name of Jesus. यीशु, It's the name of Jesus. यीशु का नाम, It's the name of Jesus. यीशु मसीह का नाम। Receive that name tonight. आज आप इस नाम को अपने जीवन में लेकर आए। Don't go empty, church. आप खाली न जाएं। My friends, my beloved ones, don't go empty. आज आप यहाँ से खाली न जाएं। Just say, Lord Jesus, I give my life to you. आप कहें कि यीशु, मैं अपना जीवन आपको देता हूँ। Work in me. प्रभु आप मेरे अंदर चले। Spring up in me. यीशु आप मेरे अंदर, आप उस सोते को लेकर आए Make my life like Garden of Eden. और अदन की वाटिका के समान मेरे जीवन को खूबसूरत बनाए। Hallelujah. हालेलुया, Hallelujah. हालेलुया, Hallelujah. हालेलुया। The Lord loves you. प्रभु आपसे प्यार करते The Lord हैं। cares for you. प्रभु आपकी चिंता करते He हैं। has not forsaken you, my friend. प्रभु ने आपको छोड़ा नहीं है मेरे His दोस्त। passion is with you. प्रभु की अति करुणा आपके साथ है। Hallelujah. हालेलुया। Thank you so much for watching this video. और धन्यवाद इस वीडियो को देखने के लिए। And I hope that we as a team of House of Faith are blessing to you all. और मैं विश्वास करता हूँ कि हाउस ऑफ फेथ की पूरी टीम आपके लिए एक महान आशीष We है। continue to pray for you and bless you. हम आपके लिए प्रार्थना करते रहेंगे और निरंतर आपके लिए एक आशीष का कारण बने Let not your रहेंगे। hearts be troubled, not it be dismayed. अपने हृदय को दुखी ना होने दें, अब आप चिंता ना But करें, be
joyful in every पर circumstance. हर परिस्थिति में आनंद मनाएं। Rejoice in the Lord. आनंद मनाएं प्रभु में। That is the will of God. यही आपके लिए प्रभु की इच्छा है। Thank you so much for having us tonight. और धन्यवाद आप सभी को जिन्होंने भी, सारे दर्शक जो हमें देख रहे हैं। It's a great privilege to serve the Lord and to bring the gospel, bring the prayers and bring the word of God to you. प्रभु की सेवा करना ये सबसे ऊंची बात है और इस सुसमाचार को आप तक पहुंचाना आदर की बात May है। the Lord bless you and keep you. प्रभु आप सभी को आशीषित करें और आपको सुरक्षित रखें। May He shine His face upon you. प्रभु का चेहरा आप पर चमके। May His presence always be with you. प्रभु की उपस्थिति आपके संग रहे। His love, joy, peace, goodness be upon you. प्रभु की करुणा, प्रभु की भलाई, प्रभु की दया और प्रभु का प्यार आपके साथ रहे। This day and the days to come. आप से लेकर हमेशा। In Jesus' name we pray. यीशु मसीह के नाम से हम मांगते हैं। Amen. आमेन। Thank you so आमेन। much. Thank you.